हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। जिसे हम थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे डिफरेंट है कोलिजन थ्योरी से वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोलिजन थ्योरी क्या है, हम मान के चलते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर दी सिंपल हार्ड स्फीयर, ठीक है। तो और उसमें जो हमने देखा था कि जो रिएक्शन रेट है दैट डू नॉट गिव अस द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके। मीन्स वहाँ पे हमने बात की थी कि इंस्टेंटेनियसली वहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो डिसअपियर होते हैं और इंस्टेंटेनियसली क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। सो इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द चेंज विच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस व्हेन द reactant converted to the product, okay. So the transition state theory proposed that the reacting molecules approach each other and a series of changes occur in the bond distances, okay. So reacting molecules, they first form the intermediates. Let we have the A and B, the two reacting molecules. When they approach each other, they collide and they form some intermediate, okay, before getting converted into the product. So there is a formation of an intermediate which they called as the transition state or the activated complex, ठीक है। So this transition state cannot be isolated in any ways. So it exists in the equilibrium with the reacting molecules, and the rate of reaction is given by the rate of dissociation of activated complex, ठीक है। तो जब ये डिसोसिएट करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे तो उस स्टेप से हमारे पास क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, ओके। सो फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस द आयरिंग वाज अ साइंटिस्ट हु गेव एन इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हम आयरिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। एंड व्हाट वाज दैट इक्वेशन, द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर टी upon NH into K star, okay, where this K, small k, is the rate constant and the capital K is the equilibrium constant, ठीक है। and we know that R is what, it is the gas constant, T is the absolute temperature, okay, and N is the Avogadro number, and H is the Planck constant. H is the Planck's constant, okay. So यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया, इट वाज गिवन बाय द आयरिंग, सो इट इज नोन एज द आयरिंग इक्वेशन, ओके। सो हियर विच इज K star, as I said, it is a rate equilibrium constant for a reversible reaction. So in this case, what would be equal to? It would be equal to the concentration of the activated complex molecules upon the concentration of the reacting species, okay. And we also know that the equilibrium constant is related to the free energy change as delta G is equal to minus RT log of K, that is equilibrium constant. And now here we have the equilibrium constant for the activated complex, or we can say the equilibrium constant for the activation reaction, ठीक है। equilibrium जो reaction है जिसमें पास क्या बन रहे हैं, activated molecule formation हो रही है। so in this case we can write the delta G star which is known as the free energy of the activation, and it is equal to minus RT log K star. Now write down, this is equation number 1 and this is the equation number 2, ठीक है। So from this equation we can write the log K star is equal to minus delta G star upon RT, ठीक है। Further we can change this equation to the K star is equal to e raised to power minus delta G star upon RT, okay. We have this equation in which the equilibrium constant for the activating reaction is given as e raised to power minus delta G star upon RT. Let it be equation number 3, okay. As I said,
the delta G star is the free energy of the activation, means when the reacting molecules, they are reacting and changing into the product which is the activated molecules. And what is delta G? Delta G is the free energy of the product minus free energy of the reactant. Okay, now here the product are the activated molecules. ठीक है जी, इसलिए इसको हमने लिखा है डेल्टा G star and it represent the free energy of the activation. Further now, substituting the value of K star from the equation number 3 into the equation number 1, we get the rate constant is equal to RT upon NH e raised to power minus delta G star upon RT. जस्ट हमने K स्टार की वैल्यू को हमें पुट कर दी e raised to power minus delta G star upon RT. Let it be equation number 4. Further, we also know that the delta G is equal to delta H minus T delta S. ये हमने thermodynamics में पढ़ा हुआ है. Okay. Now we can change this delta G into delta G star. So we can write it as a delta G star, which will be equal to delta H star minus T delta S star. Okay. Where delta H star and delta S star are the enthalpy of activation, that is known as the enthalpy of activation, and delta S is the entropy of activation. ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे डेल्टा G स्टार है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, डेल्टा H स्टार माइनस T डेल्टा S स्टार. ठीक है, सो वी विल हैव द K इज इक्वल टू RT अपॉन NH e raised to power minus delta H star minus T delta S star upon RT, or we can write the K is equal to RT upon NH e raised to power, हमने सेपरेट कर लेना इक्वेशन को, तो डेल्टा S स्टार अपॉन R इंटू e raised to power माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT. ठीक है, कुछ नहीं किया हमने. We have the delta H star minus T delta S star, ठीक है, अपॉन RT. तो हमने क्या किया, दो चीज़ों को सेपरेट कर लिया. इट वॉज माइनस हेयर. ठीक है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज माइनस डेल्टा H star प्लस T डेल्टा स्टार, तो इट बिकम्स माइनस डेल्टा H star अपॉन RT प्लस T डेल्टा S star अपॉन RT. RT से RT कैंसिल हो गया. वी हैव दी प्लस डेल्टा S स्टार अपॉन R एंड माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT. उनको हमने सेपरेट सेपरेट लिख लिया इस तरीके से. नाउ दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द आयरिंग इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज द फंडामेंटल रिलेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जिससे हम रेट कांस्टेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब पीछे हमने एक इक्वेशन लिखी थी, दैट इज द K इज इक्वल टू RT अपॉन NH e raised to power delta G star upon RT. Now in this equation we have the two terms, one is the RT upon NH and other is the exponential term of the delta G star. Okay, so the first factor है that is constant at a constant temperature. If we have a temperature constant, then all other are constant, so this term will be constant. Okay, so the rate of reaction depend only on the second factor which involves the delta G star with a negative sign. इससे क्या पता चल रहा हमें कि at a certain temperature greater the value of delta G star lesser will be the rate of the reaction. क्योंकि अब नेगेटिव साइन है, जितनी ज़्यादा हमारे पास क्या रहेगी, डेल्टा G की वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव होती जाएगी, तो मीन्स उतना ही हमारे पास क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट कम रहेगा, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लेसर फॉर द रिएक्शन हैविंग द हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा G, मीन्स free energy of activation. Okay, so next we have the comparison of transition state theory and Arrhenius equation. Okay, so what is the Arrhenius equation? It is
k is equal to a into e raised to power ea upon RT. And according to activated complex theory, the rate constant is given as k is equal to RT upon NH e raised to power delta S star upon R into e raised to power minus delta H star upon RT. Now write down this equation number 1 and this is equation number 2. Now comparing these two equations 1 and 2, we have the value of A which is equal to RT upon NH e raised to power delta S star upon R. Okay, so we have the value of A, and second term, that is e raised to power minus ea upon RT is equal to e raised to power minus delta H star upon RT. ठीक है, and from that we can say EA is equal to delta H star, means the enthalpy of activation is equal to the activation energy, but this relation is approximate, means the activation enthalpy of जो activation है और जो activation energy है, they are not exactly equal, they are nearly equal, they are nearly equal. ठीक है, तो फिर कितना डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है. द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द EA एंड द डेल्टा H स्टार कैन बी कैलकुलेटेड, जो हम यहाँ पे करने लगे हैं. सो आई कैन अगेन री राइट द इक्वेशन, द रेट कांस्टेंट फ्रॉम द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, दैट इज इक्वल टू R अपॉन NH e रेज टू पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R. इसको मैं एक टर्म लिख लेता हूँ. अब जो t था उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, e रेज टू पावर डेल्टा H स्टार अपॉन RT. ओके, सो दिस इज ए कांस्टेंट टर्म बिकॉज देयर इज नो टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर हमने बाहर ले लिया, मीन्स अगर टेम्परेचर चेंज भी होता है तो दिस इज रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट. सो द k इज इक्वल टू द k स्टार इंटू t इंटू e रेज टू पावर माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT. ओके, अब यहाँ पे k स्टार क्या है, इट इज नथिंग बट R अपॉन NH e रेज टू पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R. ओके, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. Now taking the log on the both side, we have the log of k is equal to log of k star plus log of temperature minus एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा H स्टार अपॉन RT. ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ठीक है, सो वी हैव क्या आ जाएगा हमारे पास, द d log k अपॉन dt इज इक्वल टू, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, सो इट विल बी 0. नेक्स्ट वी हैव द log t, d log t बाई dt, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t. ठीक है, सो d बाई dt ऑफ log t, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई t. ठीक है, सो इट इज 1 बाई t. नेक्स्ट हमारे पास है टर्म डेल्टा H अपॉन RT. तो डेल्टा H अपॉन R इज ए कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, द dt d बाई dt ऑफ 1 अपॉन t, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर. तो माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा H स्टार अपॉन R, 1 अपॉन t का क्या बन गया, t स्क्वायर, सो इट इज t स्क्वायर. ओके, फर्दर वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ दिस, तो दैट वुड बी इक्वल टू RT स्क्वायर. यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज RT प्लस डेल्टा H स्टार. ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4. ठीक है जी, सो वी कैन रीराइट दैट इक्वेशन अगेन, द d log k बाय dt इज इक्वल टू, इसको मैं डेल्टा H टर्म को आगे लिख लेता हूँ. ठीक है, प्लस RT अपॉन RT स्क्वायर. ठीक है, इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर 4. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू Arrhenius इक्वेशन, the Arrhenius equation that is given as the k is equal to a e raised to power minus ea upon RT. Taking the log on both side,
taking logarithm on both side, we have the log of k is equal to log of a minus EA upon RT. Okay, now again differentiate equation with respect to temperature. ठीक है, तो it will become d log k by dt, it will be equal to a कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अगेन EA अपॉन R हमारे पास एज सच आ जाएगा, तो d बाई डी टी ऑफ 1/t अगेन इट विल बी दी माइनस 1/t स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी t स्क्वायर. नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5. ओके, नाउ इक्वेटिंग द इक्वेशन नंबर 4 and 5, लेफ्ट हैंड साइड टर्म जो है हमारे पास क्या है, सेम है, तो मीन्स राइट हैंड टाइम जो सेम टाइम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव बी EA अपॉन RT स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा H स्टार प्लस RT अपॉन RT स्क्वायर. तो ये तो कैंसिल हो गया. फ्रॉम दैट वी हैव EA इज इक्वल टू डेल्टा H स्टार प्लस RT, और द डेल्टा H स्टार इज इक्वल टू EA माइनस RT. ठीक है, ये डिफरेंस है कि जो हमारे पास डेल्टा H है दैट इज लिटिल बिट लेस देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी. कितना लेस है, दैट इज माइनस RT. RT टर्म जो हमारा लेस है, टेम्परेचर जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या रहेगी, जो एंथैल्पी है वो लेस रहेगी एक्टिवेशन एनर्जी से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी and collision theory. Okay, so collision theory के accordingly what was the rate constant, that was equal to P A e raised to power minus EA upon RT, and from the activated complex theory the K is equal to what, RT upon NH e raised to power delta S star upon R into e raised to power delta H star upon RT. ठीक है, नाउ इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस वी कैन राइट, जो इसमें हमारे पास टर्म है PA दैट इज इक्वल टू RT अपॉन NH इंटू e रेज टू पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R. ठीक है, जो दूसरी टर्म थी वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज EA अपॉन RT इज इक्वल टू क्या है, दैट इज e रेज टू पावर माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने सिर्फ इनको देखना है. ओके, तो इसमें जो हमारे पास ये RT बाय NH है, RT बाय NH, इसके अगर हम यूनिट्स कैलकुलेट करें तो हमें पता है R के यूनिट्स क्या होते हैं, दैट इज जाउल पर केल्विन पर मोल, एंड टेम्परेचर इज केल्विन, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, पर मोल. ओके, एंड H इज द जाउल्स सेकेंड्स. तो जब इनके हम यूनिट्स पुट करते हैं तो वी हैव RT बाय NH इज इक्वल टू जाउल पर केल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर दैट इज केल्विन अपॉन मोल पर मोल. ओके, इनटू H दैट इज जाउल सेकेंड्स. तो पर मोल से पर मोल कैंसिल, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, जाउल से जाउल कैंसिल, तो यूनिट्स आर 1 अपॉन सेकेंड्स, मीन्स पर सेकेंड्स. अब पर सेकेंड्स क्या होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो हेयर इट इज इक्वल टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. तो जिसको हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया A से. सो व्हाट इज A? A इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन. मीन्स जो सेकेंड टर्म है e रेज टू पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R दैट इज इक्वल टू P. ओके, मीन्स P विच इज ए स्टीरिक फैक्टर that is equal to e raised to power delta S upon R. Means यहाँ पे हमारे पास it is related to the entropy of the activation in this transition state theory. ठीक है, तो अगर हमें entropy of activation पता चल जाए भी कितनी है तो वहाँ पे हम steric factor easily निकाल सकते हैं. Okay, so this is the comparison of transition state theory and the collision theory. Next we have the advantages of transition state
थ्योरी. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी? अब हमने ये देख लिया है कि ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है दैट इज सुपीरियर ओवर द कोलिजन थ्योरी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. क्यों है, हमने ये जो देखा है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व की है कि जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है दैट ऑफर्स द मोर एप्रोप्रिएट concept of the formation of the activated complex rather than the instantaneous formation of the product by the collision of the reactant and molecules. ठीक है, so we can state it offers more appropriate concept of formation of activated complex rather than the instantaneous formation of products. ठीक है, जो कि हमें बताया था कोलिजन थ्योरी ने कि बाय द कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, इंस्टेंटेनियसली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, इंस्टेंटेनियस कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एक तो हमें ये इसकी एडवांटेज नजर आती है. सेकंड क्या इसकी एडवांटेज है कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है वो एक थर्मोडायनेमिक नेचर की है, क्योंकि इसमें हमने सारी टर्म्स आ रही हैं वो थर्मोडायनेमिक टर्म्स आ रही हैं. ओके, इट ऑल्सो जस्टिफाइज द स्टीरिक फैक्टर जो कि हमने अभी देखा है P. ओके, जो कि हमने देखा है कि अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दिस स्टीरिक फैक्टर इज equal or we can be find out from the entropy of the activation. Okay, so we can say the transition state theory is thermodynamic in nature and it justifies the steric factor that is P of collision theory in terms of entropy of activation, that is delta S star. Okay, so this is all about the chemical kinetics part 2.